हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। A company applied to the commercial bank for the first time for financing its working capital requirements. The following information about the projections for the current year is given. आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दिए हैं रुपीज़ पर यूनिट, रॉ मटेरियल, लेबर ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। अगर इंफॉर्मेशन इज गिवन, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन, WIP completion 50% on all average half a month, and finished goods in stock on an average 1 month, credit allowed by supplier 1 month, allowed to debtor is 2 months. Average time lag in payment of wages 1.5 weeks and 4 weeks in overhead expense. So cash in hand and at bank is desired to be maintained at 5,000. All sales are on credit basis only. So you are required to prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance on activity level of 9600 units of production. प्रोडक्शन के यूनिट्स आपको दिए हैं 9600 और कॉस्ट आपको ये रखी है पर यूनिट। Assume that production is carried on evenly throughout the year and wage and overheads accrue similarly. For the calculation purpose, 4 weeks may be taken as equivalent to a month and 52 weeks in a year. तो 1 मंथ को आपने इक्वल करना है 4 वीक से और टोटल वीक्स आपको लेने हैं 52। तो पहले आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस by all the three methods for working capital at the Kangan committee, and assuming core current assets constitute 25% of current assets. फिर आपको मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है अंडर 3 मेथड्स ऑफ कंगन कमेटी। को पहले प्रिपेयर करके इनकम स्टेटमेंट। जैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो फाइनेंसिंग के लिए हम नॉर्मली वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट बेसिस in income taking. So first element is our cost of raw material, then second is our direct labor, and then it is overheads. जैसे आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है कॉस्ट बेसिस पे, सो प्रॉफिट एंड सेल फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड। यूनिट्स आपको दिए हैं 9600 यूनिट्स। raw material cost is given per unit 40, labor is 15, overheads are 30. So this will be our total factory cost, or this will also be cost of production, and this is also cost of sale. So this is 9600 into 40, 384,000. 9600 into 15, 144,000. And 96 into 30, this is 288,000. So totally 384 plus 144 plus 288, 816,000. So now we can prepare statement of working capital. अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में। सो फर्स्ट लेट अस सी करंट एसेट्स। नंबर 1 इज our stock of raw material. This is 4 weeks consumption. So raw material consumption 384 और 4 वीक्स का पीरियड है। टोटल वीक्स आपको लेने हैं 52। तो दिस इज 384 डिवाइडेड बाय 13, दिस इज कमिंग 29, 538. Then we have WIP. इसकी कंप्लीशन स्टेज है 50% ऑन एन एवरेज हाफ ए मंथ। तो सभी एलिमेंट्स के लिए 50% मानी जाएगी। तो स्टॉक ऑफ WIP ये हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, देखिए 816।
एंड पीरियड इज गिवन, दिस इज अवर हाफ ए मंथ। तो हाफ मंथ में 2 वीक्स माने जाएंगे आपके। सो यू टेक वीक्स 2/52 और आपको लेना है 50% कंप्लीट। सो 816,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 50%। तो दिस इज कमिंग 15,692। तो ये राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं फिगर से। देन वी हैव अ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इट्स ए पीरियड इज 1 मंथ। तो फिनिश गुड्स की कैलकुलेट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 816, पीरियड इज 1 मंथ। तो 1 मंथ में हम लेंगे 4 वीक्स, सो इंटू 4/52। So 816,000 divided by 13, so this is coming 62,769. So then we have debtors, credit allowed to debtors is 2 months. Debtors also we calculate on cost of sale 816, period is 2 months. So 2 months में बन जाएंगे आपके 8 वीक्स। तो आपने जहाँ भी मंथ्स है उसको वीक्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 मंथ इज इक्विवेलेंट टू 4 वीक्स। So 816,000 into 8 divided by 52. This is 125,538. So then we are given that lag in payment of wages outstanding है, overhead का 4 weeks है, cash in hand is 5,000। तो कैश का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, this one is 5,000। So this you get total current assets। So total is 29,538 plus 15,692 plus 62,769 plus 125,538 plus 5,000. So totally coming 238,537. Then we have current liabilities। इसमें पहले हैं आपके पास क्रेडिटर्स ऑन परचेज ऑफ मटेरियल विच इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। क्रेडिटर का पीरियड आपको मेंशन किया है इसमें, अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। तो परचेज इज 384 और 1 मंथ में हम लेंगे 4 वीक्स, 4/52। So this is coming 29,538. Then we have outstanding wages। वेजेज है आपके पास टोटल 144। इसका पीरियड देखिए आपको मेंशन किया है, लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेज 1.5 वीक्स, तो 1.5 अपॉन 52 वीक्स। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का पीरियड आपको मेंशन किया है 4 वीक्स। ओवरहेड्स हैं आपके 288 इंटू 4/52। So outstanding wages 144,000 into 1.5 divided by 52. This is coming 4154. Then 288,000 into 4 divided by 52. This is coming 22,154. So total current liabilities 29,538 plus 4154 plus 22,154. This is 55. So 846. Difference is our working capital। So this is coming 182,691. So now we can calculate working capital financing under 3 methods of Tandon Committee report। Next we have to calculate as per Tandon Committee maximum permissible bank finance amount आपके रुपीज हैं, and as per 3 methods। So you see first method। तो फर्स्ट पैकेज में हम लिखेंगे 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मीन्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज 75%। करंट कैसे माइनस करंट है 182,691।
इसमें आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा 182,691 इंटू 75%, दिस 137,018। तो राउंड ऑफ कर लिया मैंने आपको 2 डेसिमल। देन वी हैव सेकंड मेथड, इसमें आपको मिलेगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यू टेक 75%, टोटल करंट एसेट्स है आपकी 238,537 माइनस करंट लायबिलिटीज आर 55,846। The maximum permissible bank finance which you can get it 238,537 into 0.75 minus 55,846. You can see 123,057. Then we have a third method. तो थर्ड मेथड में आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मिल जाएगा 75% को करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपको एक इसमें मेंशन किया है कोर करंट एसेट्स हैं आपकी 25% ऑफ करंट एसेट्स से। इट मीन्स आप 75% कीजिए, करंट एसेट्स हैं आपकी 238,537, तो इसी का 25% आपने माइनस करना है विच इज कोर करंट एसेट्स 238,537। इसमें से माइनस कीजिए करंट लायबिलिटीज 55, सो 846। तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी अवर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो पहले लेते हैं 238,537 इंटू 25%, इसको कर लीजिए माइनस फ्रॉम दिस करंट एसेट 238,537 बैलेंस वी गेट करंट एसेट, इसका कीजिए 75% इंटू 75%, so this we are getting to 134,177 minus कीजिए 55,846 minus 55,846, this will be bank finance 78,330. So next let us see problem number 10. So in this question data given is Emmanuel Limited has furnished the following cost data relating to the year ending 31st March. सेल्स आपको दिए हैं रुपीज़ इन लैक्स में 4500, मटेरियल कंजम्पशन डायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 100% वेरिएबल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100% फिक्स्ड हैं आपके, सेलिंग ओवरहेड इट इज गिवन। कंपनी वांट्स टू मेक ए फोरकास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड एंटीसिपेट्स दैट, आपको नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेशन करनी है वर्किंग कैपिटल की। हमारी एक्सपेक्टेशन है सेल विल गो अप बाय 100%। तो इट मीन जब सेल्स आपकी इंक्रीज होंगी 100% मीन डबल हो जाएंगे, तो जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो भी डबल हो जाएंगे आपके। सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी 1500, ये आपको दे रखे हैं। स्टॉक होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी रॉ मटेरियल फॉर 2.5 months, WIP 1 month, फिनिश गुड्स हाफ मंथ, बुक जैक्स फॉर 1.5 month। लैगिंग पेमेंट विल बी 3 months फॉर क्रेडिटर, 1 month फॉर वेजेज, हाफ मंथ फॉर फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। ये सारे हमें पीरियड्स दिए हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर कंजन कमेटी गाइडलाइंस, एज्यूमिंग कोर करंट एसेट्स आर 30 lakhs। तो इसमें जैसे आपको बैंक फाइनेंसिंग करनी है वर्किंग कैपिटल में, के लिए आपको कुछ मेंशन नहीं किया है। सो वर्किंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। तो पहले प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो लेके से इनकम स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, तो रुपीज़ आ रहे हैं लैक्स। तो सेल्स आपकी डबल हो जाएंगी, तो इट मीन्स 9000 है, तो इट मीन जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो भी डबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव मटेरियल, देन वी हैव डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% वेरिएबल है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज एंड ये सेलिंग ओवरहेड। मटीरियल आपको दिए हैं जैसे 1500, इट मीन ये डबल हो जाएंगे 3000 रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं। वेजेज आपको दिए हैं 300, इट विल बिकम 600। फैक्ट्री ओवरहेड्स इट इज 600, इट विल बिकम 1200। So this will be our, we can say, factory cost or cost of production. So this totally coming 4800.
दिखेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट। देन यू कैन ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये 100% फिक्स है, इट मीन्स ये सेम रहेंगे 600। सेलिंग ओवरहेड आपको मेंशन किए हैं, इट विल बिकम 1500 lakhs। So this will be our total cost, which is also called total cost of sales. So this is coming to be 48, 54, 6900. बस सेल्स आपको क्लियर नहीं करनी है क्योंकि फाइनेंसिंग करनी है, सो वी विल कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल ऑन कॉस्ट बेसिस। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट आर अमाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स, रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव stock holding for next year will be raw material for 2.5 months. So we will get a stock of raw material. You take raw material consumption 3000. Period है आपका 2.5 month, 2.5 by 12. So 3000 into 2.5 divided by 12, 625 lakh. यानी कि given WIP 1 month। अब WIP की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेंशन नहीं की, इट मीन्स ये पीरियड में ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है, तो आपने पीरियड लेना है 1 मंथ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट 4800 इंटू 1/12, जिस इज 400। यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स इज हाफ मंथ, दिस विल बी टेकन ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4800 इंटू 0.5 months, so it will be 200. Then we are given book debts means debtors 1.5 month. Debtors we are calculating at cost. So you take cost of sales 6900. Period is given. This is 1.5 month. 1.5 divided by 12. This is 862.250. फिर आपको आउटस्टैंडिंग पीरियड दिए हैं सभी के। लैगिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 3 मंथ्स हैं, देन 1 मंथ है वेजेज, हाफ मंथ है फॉर अदर ओवरहेड्स। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। कैश का बैलेंस आप चेक कीजिए, कैश बैलेंस इज नॉट मेंशन्ड, सो इट मीन्स ऑल दीज आर करंट एसेट्स। दिस इज 2087.250। तो करंट लायबिलिटीज़ में पहले हमारे पास हैं क्रेडिटर्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेज। क्रेडिटर्स का पीरियड आपको मेंशन किया है 3 मंथ से, सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल विच इज इक्वल टू कंजम्पशन इंटू 3/12, दिस इज कमिंग 750। सो आउटस्टैंडिंग वेजेज विल बी, वेजेज हैं 600, period is given 1 month, 1/12, so this is 50. So then we are given half month for factory, office and administration and selling overhead, then outstanding overheads, इन सभी का पीरियड है हाफ मंथ। सो ओवरहेड्स को आप कंबाइन कर लीजिए, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड, तो दिस इज कमिंग 1800 प्लस 1500, टोटल ओवरहेड्स हैं आपके 3300। पीरियड इज हाफ मंथ, 0.5/12 into 0.5 divided by 12, so these are coming 137.50 plus 800, so total current liabilities are 937.50. balance is working capital requirement, so working capital is coming 1150. So now we can calculate financing of working capital under 3 methods of Kenyan committee. So next we have to calculate as per Kenyan committee what is maximum permissible bank finance under 3 methods, रुपीज आपके चलते हैं लैक्स में।
legacy method number 1. So here maximum permissible bank finance is 75% of current assets minus current liabilities, which is 75% of working capital. It means you can take directly 0.75 into 1150. So this will be maximum permissible bank finance. 862.50. Then we have second method. So we get 75% of current assets minus current liabilities. Current assets are 2087.50. Current liabilities are 937.50. तो पहले आप कीजिए 75% ऑफ करंट एसेट्स 2087.5 इंटू 75% माइनस करंट लाइबिलिटी 937.5. So this is 628.125. Then we have number third method. It is 75% of current assets minus core current assets minus current liabilities. तो आपको कोर करंट ऐसे मेंशन किए हैं जिसे कि 30 lakhs. So maximum permissible bank finance will be 75% of current assets हैं आपकी 2087.50 माइनस कर लीजिए 30 माइनस करंट liabilities. So this is 2087.5 minus 30 into 75% minus 937.25. So maximum permissible bank finance is 605.625 lakhs. So next let us see problem number 11. So this is a small question. They are asking what would be maximum permissible bank finance or bank borrowing as per method second and third of Tandon Committee norms in case of following data. Total current assets आपको दिए हैं 700 lakhs, of which core current assets are 180 lakhs, current liabilities excluding bank borrowing is 300 lakhs. तो आपको जैसे डाटा मेंशन किया है रुपीज़ हैं लैक्स में आपके. करंट एसेट्स आपको दी हैं, कोर करंट एसेट्स दी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं. करंट एसेट्स आर 700, कोर करंट एसेट्स 180 एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर 300. तो इस करंट लाइबिलिटीज़ में जो बैंक से फाइनेंस आपको लेना है वो इंक्लूड नहीं है और वो इंक्लूड करते भी नहीं हम. नाउ यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी. और आपको कैलकुलेट करना है एज पर मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3. तो मेथड 2 में मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है आपका 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो करंट एसेट्स 700, उसका कीजिए 75%, करंट लाइबिलिटीज आपकी हैं 300. तो यू विल गेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इसे 225 लाख रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं. देन वी हैव मेथड नंबर 3. So here maximum permissible bank finance is 75% of current assets minus core current assets minus current liabilities. You take current assets आपकी 700, core current assets आपको दिए 180, वो माइनस कीजिए आप. current liabilities are 300. So this is 700 minus 180. इसका कीजिए 520 बैलेंस इंटू 75% माइनस करंट लाइबिलिटी 300. तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज 90 lakhs. तो जिस पर क्वारी कीजिए क्वेश्चन. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंसिंग पॉलिसी की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स. थैंक यू.